Hello everyone and welcome back to Mind Review or welcome to Mind Review. I'm Sakshi Kaushik and this is a Israeli series going on at this channel. If you are new to the channel, consider subscribing to the channel and checking out the entire playlist that has been created ये इसराइली सीरीज के लिए लिंक आपका प्लेलिस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा एंड यू कैन इजीली फाइंड ऑल द वीडियोस दैट हैव बीन अपलोडेड टिल नाउ in a systematic order. ठीक है? So yesterday we started off with chapter 5 and today's video is part 2 of chapter number 5. So if you missed out on any of the parts, again do the same thing. Description box में जाओ, playlist की link पे click करो, वीडियोस एक्सेस करो, पढ़ाई करना शुरू करो. ठीक है? So कल हमने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में डिस्कस किया था इन लर्निंग एंड टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑपरेंट कंडीशनिंग. क्या है भाई ये ऑपरेंट कंडीशनिंग, इससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स क्या है, हु ऑल आर एसोसिएटेड, कौन कौन नाम है जो एसोसिएटेड है ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ. वील टॉक अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुडे. ठीक है, चलिए. सो ऑपरेंट कंडीशनिंग का इन जनरल द मीनिंग ऑफ दिस कंडीशनिंग तो यू ऑलरेडी नो फ्रॉम यस्टरडे, इट इज लर्निंग एंड ऑपरेंट का मतलब होता है वॉलंटरी. So operant is voluntary, conditioning is learning. So operant conditioning is actually voluntary learning. If you recall, yesterday we talked about classical conditioning. So classical conditioning में हमने देखा था कि जो learning है वो involuntary है. Why involuntary? Because the organism who is involved in the process of learning does not have much role in learning, है ना. उसके सामने बेल बजा दी, फूड प्रेजेंट कर दिया, तो डॉग जो था उस केस में एक्चुअली खुद से तो कुछ नहीं कर रहा था. It was the experimenter or the researchers who were doing things and the dog was only a passive recipient of all of these things. But in operant conditioning and the experiments that you will study in a while, you will see कि यहाँ पे जो लर्निंग होती है वो वॉलंटरी होती है. इंसान खुद से लर्न करना चाहेगा तो वो लर्न होगा. एंड देयर इज अ काइंड ऑफ टू काइंड्स ऑफ learnings that you will see over here. One is known as trial and error learning and another is known as learning that is related with reinforcement and punishment. ठीक है, ये दो तरीके हैं यहाँ पे ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंडर. सो द नेम एसोसिएटेड विद ट्रायल एंड एरर लर्निंग इज एडवर्ड एल थॉर्नडाइक. सो द नेम इज बेसिकली एडवर्ड ली थॉर्नडाइक. आप ज्यादातर एल देखोगे बट दिस एल स्टैंड्स फॉर ली. ओके, Edward Lee Thorndike talked about trial and error learning. And let me just tell you a little bit more about him. So Edward Lee Thorndike जो है वो first person थे who actually tried to outline the laws or the laws of learning that are related to voluntary learning. तो जो कुछ laws होते हैं जैसे law of effect, law of exercise, law of use, disuse, तो ये जो laws हैं जो voluntary learning से related हैं, the first person to establish these laws were Edward Lee Thorndike. And the name associated with the learning that is related to reinforcement and punishment is Burhus Frederick Skinner. ओके, बहुत कम लोगों ने इनका पूरा नाम कभी देखा या सुना होगा. यूजुअली हम बीएफ स्किनर के नाम से इनको जानते हैं, बट द नेम इज बुरहूस फ्रेडरिक स्किनर, बीएफ स्किनर. सो ही वाज द पर्सन who actually coined this term operant conditioning. ठीक है, so even though operant conditioning के principles पे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने काम करना शुरू कर दिया था, but it was BF Skinner who gave this name of operant conditioning in the year of 1938 to be specific. ठीक है, और इन्होंने बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला था अपॉन रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट. चलिए, सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट ट्रायल एंड एरर लर्निंग कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे to actually demonstrate this trial and error learning. So this was the kind of setup, this was the kind of cat box that was used. So here experiment with the animal being used as cat. Ivan Petrovich Pavlov ने classical conditioning में dog use किया था. So यहाँ पे एक इस तरीके का setup बनाया गया, box kind of a thing from which the cat cannot get out. ठीक है, और इसके सामने ऐसे जाली वाले टाइप के डोर दिखा दिए so that outside this is the food, this is the cat food or fish that is actually kept over here. So the cat naturally would want to reach out to this food, है ना. वो तो नेचुरल टेंडेंसी होती है. हम ह्यूमंस को भी जेल में बंद कर देंगे और बाहर पिज्जा या डोनट्स रखें, we will want that pizza and donuts, है ना. We would want to reach out to those things. So similarly the cat also wants to reach out to this fish.
but it is out of reach. The cat can only get this fish if somehow this box open, है ना. तो cat क्या है, वो अंदर ही अंदर बॉक्स में मूव करेगी. इट विल ट्राई एंड डू सम और द अदर थिंग्स कि किसी तरह तो ये बॉक्स खुले और मैं वो फिश खा लूं, है ना. And a point will come that accidentally this red kind of a liver that you can see inside, accidentally while doing these things the cat might press the liver, or there some researchers say ki balloon tha andar, some researchers say that there was a string inside, some say that there was a liver. So there was something accidentally, after trial and errors, the cat pushes that particular thing and this box opens and the cat gets the cat food. सो हुआ क्या यहाँ पे बेसिकली कि आपका एक बॉक्स है जो कि बंद है, तो कैट अंदर ही अंदर ट्रायल एंड एरर करिए, कभी एक दरवाजे बॉक्स के एक दरवाजे पे पुश करिए, कभी छत पे पुश करिए, कभी उधर लेफ्ट राइट एवरीथिंग the cat is trying to do so that this box opens and she is able to reach the cat food or the fish, है ना, and she is able to eat that. So accidentally there will come a point when the liver will be pressed or the balloon will be pressed or the string will be, whatever that thing was, when that will happen that the box will open and the cat will get the food. So इसी चीज को थॉर्नडाइक ने क्या बोला, इसी चीज को थॉर्नडाइक ने बोल दिया कि ये है ट्रायल एंड एरर लर्निंग, जहां पे ऑर्गेनिजम्स कैसे लर्न करते हैं, ट्रायल एंड एरर करके. दे ट्राई समथिंग, इफ दे फेल एट इट देन दे ट्राई अनदर थिंग, इफ दे फेल एट दिस आल्सो देन दे ट्राई अनदर थिंग, इफ दे सक्सीड इन दैट थिंग they learn कि okay ये इस तरीके से खुलता है. Now the next time that cat will be placed in this box, it will quickly press on the lever and get out and eat the food, है ना. So trial and error learning पे यहाँ पे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने फोकस किया है. And his effect is also known as law of effect. So इन्होंने एक इफेक्ट दिया है. He gave other effects also, law of exercise, law of effect and other, but law of effect is something that you should know about. लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, ये कहता है सिंपल भाषा में कि अगर आपने कोई एक्शन किया एंड दैट एक्शन इज फॉलोड बाय अ प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस, एक ऐसा कॉन्सिक्वेंस जो आपको अच्छा लगा, देन व्हाट विल यू डू, यू विल रिपीट दैट एक्शन, isn't it? You will repeat that action. For example, ठीक है, यहाँ पे कैट का एक्शन क्या था, टू प्रेस द लिवर, है ना. कैट ने क्या किया, लिवर को प्रेस किया, क्या उसको प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस मिला, यस, द कैट गॉट द कैट फूड, यानी कि उसको फिश खाने को मिला, तो उसको तो बड़ा अच्छा लगा भाई, हाँ प्लेजरेबल ये चीज है. सो विल द कैट डू इट अगेन, यस, the cat will repeat that process or repeat that action of pressing the liver again, क्योंकि उसका जो एक्शन था वो एक प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस से फॉलो हुआ. सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इफेक्ट, दैट whatever effect your action has will actually determine whether you are going to repeat that particular action or not repeat. Now for instance, you do an action and that action actually leads to an unpleasant consequence, ठीक है, उसका consequence pleasurable नहीं रहा. So will you now repeat that? No, you will not repeat that action again. Okay, again for example, let's take this cat only. ठीक है, cat आई, उसने liver को press किया, but as soon as she pressed the liver, there was a shock that was given to her. ठीक है, एक इलेक्ट्रिक शॉक मिला उसे. तो फिर से अगर हम उस कैट को उसी बॉक्स में डालेंगे बंद करके, सो विल डू यू थिंक द कैट विल प्रेस द लिवर? नो, द कैट विल नॉट प्रेस द लिवर, बिकॉज नाउ उसने ये लर्न कर लिया है कि भाई ये चीज करने से मुझे एक अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस मिला था, सो आई बेटर नॉट रिपीट दिस थिंग अगेन. ठीक है, सो दैट इज योर ट्रायल एंड एरर लर्निंग that E.L. Thorndike or Edward Lee Thorndike talked about. The basic thing that he wanted to say is कि भाई हम लोग क्या है, voluntarily learn करते हैं. Now how do you think this was voluntary learning? Because here the cat was free to roam around, है ना. इवान पेट्रोविच पावलोव के केस में तो भाई डॉग बस एक मूर्ति की तरह था, and the salivation and everything was being recorded with the help of instruments, and everything that the that was being done was done by the researcher. But यहाँ पे the cat was free to explore, free to roam around, and cat ने अपनी मर्जी से वो liver press किया, and the next time also the cat presses the liver on her own wish and on her own will, है ना. So therefore this is voluntary learning. And थॉर्नडाइक का ये लॉ ऑफ इफेक्ट क्या बोलता है कि अगर मेरा कोई एक्शन प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस को लीड करेगा, then I'll repeat that action again and again. But if it will lead to an unpleasant consequence, then I will not repeat that action again. ठीक है, so this is about a Thorndike.
Now let us talk about another person, another name related to this operant conditioning, and that name, as we saw, Burhus Frederick Skinner. So Burhus Frederick Skinner or B.F. Skinner was actually the person who gave this term of operant conditioning. ठीक है, और इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? दिस वाज अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप दैट ही डिड. इनके बॉक्स को ऑफन स्किनर्स बॉक्स भी बोला जाता है, एंड द एनिमल दैट B.F. Skinner used was rat. तो अभी तक हमने डॉग देखा, हमने कैट देखा. Now let's also see the experiments that happened with this poor rat. Okay, so what Skinner did, this was again, this is very similar to Thorndike का setup only. You will find it very similar. So what happened over here is कि again ये box थोड़ा ज़्यादा advanced था as compared to Thorndike's box. So here there was speakers also. नीचे आप देखोगे तो electric grids भी हैं जो shock दे सकती हैं rat को. Then there is a lever that the rat is required to press. कोई भी lever press कर सकते हैं और यहाँ से food भी आ सकता है. So what happened कि again the rat will move around randomly. The rat will try to get out of this box somehow या कुछ भी करने की कोशिश करेगा. So accidentally एक point आएगा कि maybe rat ने ये blue color वाला lever जो है वो press कर दिया. And as soon as rat presses this blue lever, it gets food. तो rat को क्या है, after a few trials, the rat will learn this thing कि हाँ, अब जब उसे आप next time box में डालोगे, the first thing rat will do is to press this blue lever and get the food. है ना, पहला काम उसका यही होगा कि ये lever press करो और खाना ले लो. Okay, so what has actually happened? Learning has actually taken place, and this learning is what? Voluntary in nature. बिकॉज द रैट इज डूइंग ऑन इट्स ओन विल, है ना. तो जब आप 3-4 बार रैट को इस बॉक्स में डालोगे, रैट ट्रायल एंड एरर काइंड ऑफ सॉर्ट थिंक करके ये चीज समझ लेगा कि ओके ये लिवर प्रेस करके मुझे खाना मिल रहा है. सो द नेक्स्ट टाइम यू विल प्लेस द रैट इन दिस पर्टिकुलर बॉक्स अगेन, द रैट विल फर्स्ट थिंग दैट इट विल डू इज टू प्रेस द लिवर. नाउ द सेकंड सिचुएशन इज कि अब फूड वाला पेलेट एक्टिवेटेड नहीं है, रादर लिवर प्रेस करने से इलेक्ट्रिक शॉक मिलने वाला है इन इलेक्ट्रिक ग्रिड से. सो अगेन इफ द रैट विल प्रेस, अ न्यू रैट ओके एक्सीडेंटली अगेन प्रेसेस द लिवर एंड गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक. ठीक है, 2-3 बार उसके साथ ऐसा हो गया. सो नाउ द थर्ड टाइम दैट यू विल प्लेस द रैट इन दिस बॉक्स, द रैट विल स्टे अवे फ्रॉम दिस लिवर. वो बोलेगा भाई इस चीज से तो दूर रहना है, कुछ और प्रेस कर लेता है पर इस चीज से दूर रहना है, क्योंकि इससे क्या हुआ, एक अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस मिला उसको, एक इलेक्ट्रिक शॉक मिला उसको. So the rat will not press that lever. So this is another kind of learning that has taken place. So B.F. Skinner ने क्या किया कि इस लर्निंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि एक लर्निंग आपको रीइंफोर्समेंट की वजह से भी हो सकती है और एक लर्निंग आपको पनिशमेंट की वजह से भी हो सकती है. So over here if you notice, what is the reinforcement over here that rat got? It was the food. And what is the punishment that rat got? It was the shock. The electric shock that rat got was kind of a punishment for that rat, है ना. तो अगर कोई बिहेवियर reinforcement से फॉलोड होता है, so that behavior will be repeated again. अगर कोई बिहेवियर पनिशमेंट से फॉलो होता है, सो दैट बिहेवियर विल रिड्यूस इन इट्स कंसिस्टेंसी, है ना, वो अब इतना ज्यादा रिपीट नहीं होगा. सो अगेन इफ यू सी, दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू व्हाट एडवर्ड ली थॉर्नडाइक आल्सो सेड, कोई एक्शन का प्लेजरेबल या अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस होगा विल डिटरमिन वेदर दैट एक्शन विल बी रिपीटेड अगेन और नॉट. यहाँ पे बस फर्क क्या हुआ कि प्लेजरेबल कॉन्सिक्वेंस को रीइंफोर्समेंट बोल दिया गया और अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस को पनिशमेंट बोल दिया गया. And another important thing that is related to operant conditioning is कि यहाँ पे learning में जो है ना, learning actually depends upon what happens after the response or after the behavior has taken place. ठीक है, तो जब एक behavior या एक response organism ने make कर दिया है, उसके बाद क्या हो रहा है उस पे डिपेंड करता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में लर्निंग कैसे होगा. तो इफ यू गो बैक टू क्लासिकल कंडीशनिंग में व्हाट इज हैपनिंग बिफोर द रिस्पॉन्स विल मेक अस नो कि लर्निंग होगी या नहीं, है ना. तो सैलाइवेशन से पहले मैं बेल बजा रही हूँ, फिंगर स्नैप कर रही हूँ, फूड दे रही हूँ कि नहीं, दोज थिंग्स विल डिटरमिन वेदर द डॉग विल लर्न टू सैलिवेट एट द साउंड ऑफ बेल और नॉट. बट इन केस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, वो लिवर प्रेस करने के बाद उस रैट को खाना मिल रहा है या उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिल रहा है will determine what kind of learning the rat does, whether to press that lever again or not press that lever again. So therefore in operant conditioning, learning depends upon what is happening after a particular behavior
or after a particular response has been made by the organism. ठीक है, और यहाँ पे reinforcement होता क्या है? Reinforcement is any positive or pleasant consequence that has happened, जो कि हमारे बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करता है. ठीक है, तो अगर किसी भी एक्शन के बाद मेरे को रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, एवरीबडी इज प्रेजिंग मी दैट वाओ you are doing such a superb work and you are very good at what you do, then what will happen? I'll try to do those things again and again because that was a positive thing that happened with me. But if I get punishment, everybody just criticizes me कि छी तुम इतना बेकार काम कर रही हो, I don't like what you are doing and everything. If people are just trolling unnecessarily and giving negative feedbacks for me, then maybe I'll get a little sad, and I'll feel that okay, I don't want to do this thing again because nobody likes me, nobody appreciates me. So reinforcement increases the probability of our behavior कि हम वो behavior बार बार करें, and punishment decreases the probability of our behavior कि हम वो behavior फिर से repeat ना करें. So on this note, I would want to discuss the most important topic of today's video, that is the difference between reinforcement and punishment. So I really liked this particular chart. I picked it out, so this was a very informative chart. So यहाँ पे ये समझने से पहले कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, नेगेटिव पनिशमेंट क्या है, आपको ये चार टर्म्स समझनी होगी कि इन जनरल रीइंफोर्समेंट क्या होता है और इन जनरल पनिशमेंट क्या होता है. सो राइट नाउ आई ओनली टोल्ड यू कि रीइंफोर्समेंट क्या करता है, इट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर बिहेवियर, है ना, कि मैं वो बिहेवियर बार बार करूं. So it tries to increase the probability of behavior. Now it doesn't matter whether reinforcement is positive या फिर वो reinforcement negative है. I don't care about that thing. I only care कि वो क्या है, वो reinforcement है. तो जब तक वो reinforcement है, चाहे वो positive reinforcement हो या negative reinforcement हो, it will only do one work. That work is to increase my behavior. And another term is punishment. Punishment का only काम होता है to decrease the probability of the behavior I am engaging in. जो भी behavior मैं कर रही हूँ उसकी टेंडेंसी को डिक्रीज करना is what punishment. ठीक है, have you all seen? Alright, so punishment is to decrease the behavior. अब again I am not concerned, चाहे वो पॉजिटिव पनिशमेंट हो चाहे वो नेगेटिव पनिशमेंट हो, किसी भी तरीके की पनिशमेंट हो, उसका रोल, उसका एम एक ही होगा कि जो बिहेवियर एक इंडिविजुअल कर रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी को डिक्रीज कर देना, उसकी प्रोबेबिलिटी को कम कर देना. ओके, सो रीइंफोर्समेंट इज समथिंग दैट विल ऑलवेज इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर बिहेवियर. Punishment is something that is always going to decrease the probability of your behavior. And then we will talk about what is the meaning of this positive and negative. तो ये जो आपका positive term है, positive का मतलब हमेशा होगा to add. अब चाहे वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हो रहा हो या पॉजिटिव पनिशमेंट में हो रहा हो, द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव विल ऑलवेज बी दैट समथिंग इज बीइंग एडेड, and the meaning of negative will always be that something has been subtracted. That means something has been removed. Okay, so whether it is negative reinforcement or negative punishment, negative का मतलब क्या रहने वाला है भाई? Negative का मतलब रहने वाला है that something has been removed. So have you all understood? ये चार टर्म्स अगर समझ आ गई ना आप लोगों को तो ये पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अगेन लेट मी शो यू ओवर हियर आल्सो. रीइंफोर्समेंट मतलब किसी भी बिहेवियर को या तो उसके प्रोबेबिलिटी में इंक्रीज करना या एटलीस्ट जितना चल रहा है उतना चलते रहने देना. पनिशमेंट मतलब जो बिहेवियर चल रहा है उसको डिक्रीज करना. ओके, डजंट मैटर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, पर रीइंफोर्समेंट है तो इंक्रीज करेगा बिहेवियर को, पनिशमेंट है तो डिक्रीज करेगा बिहेवियर को. देन पॉजिटिव मतलब कोई भी स्टिमुलस ऐड हो रही है, नेगेटिव मतलब कोई भी स्टिमुलस रिमूव हो रही है. अगेन डजंट मैटर वेदर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव पनिशमेंट ऐड ही होगा, वेदर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव पनिशमेंट ऐड ही होगा. ठीक है, चलो अब ये चार टर्म्स क्लियर है तो फिर हमारे लिए इट्स अ केक वॉक नाउ. बस फिसलना नहीं है उस केक पे. ओके, चलिए, सो लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, हम कुछ ऐड करते हैं so as to increase the behavior, है ना. You see it is positive and are also. So positive का मतलब है to add, R का मतलब है to increase.
That means I am adding something to increase the likelihood of a behavior or to at least maintain that behavior. For example, कि आपके टीचर ने आपको चॉकलेट दिया, योर टीचर गेव यू अ चॉकलेट बिकॉज यू स्कोर्ड A+. तो आपका ये जो बिहेवियर है A+ मार्क्स स्कोर करने का, उस बिहेवियर को आपकी टीचर क्या कर रही है, वो आपकी टीचर रीइंफोर्स कर रही है उस बिहेवियर को. व्हाई? Because your teacher wants that again and again you get this A+. So what she did, she added a stimulus. That means she gave you a chocolate so that your behavior of getting an A+ increases or at least is maintained. So this is a positive reinforcement जहाँ पे कुछ pleasant add किया जा रहा है ताकि आपके behavior को maintain या increase किया जाए. Another thing is negative reinforcement. So see again, negative है और R है, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है भाई, रिमूव करना. R तो हमेशा फिर इंक्रीज ही होगा. सो नेगेटिव में क्या है, मैं किसी एवर्सिव यानी कि अनप्लेजेंट स्टिमुलस को रिमूव करूंगी ताकि आपका बिहेवियर इंक्रीज हो सके या एटलीस्ट मेंटेन हो सके. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगेन एग्जाम्पल से आई ऑलवेज फील द थिंग्स गेट सिंप्लीफाइड फॉर यू गाइज. एग्जाम्पल क्या है कि सपोज आपको ना आपके घर में जो है डस्टिंग करनी होती है एवरी संडे. सो यू हैव टू डू डस्टिंग. दिस इज योर रोल एज अ चाइल्ड कि आपके पेरेंट्स ने बोला है कि भाई आपको हर संडे घर की डस्टिंग करनी है. बट व्हाट हैपेंड, यू स्कोर्ड A+ वन फाइन डे. आपके एक मंडे यूनिट टेस्ट में A+ आया. सो योर फादर टेल्स यू दैट ओके, इस संडे की डस्टिंग की छुट्टी, ठीक है, इस संडे का जो डस्टिंग का तुम्हारा काम है उसकी छुट्टी. एंड दिस इज काइंड ऑफ अ रीइंफोर्समेंट फॉर यू. सो व्हाट हैज हैपेंड, ये जो डस्टिंग का काम था वो ज्यादा पसंद तो आता नहीं किसी को, कि कौन मेहनत करना चाहेगा गर्मी में डस्ट में काम करके, है ना. सो दिस वाज अ काइंड ऑफ एवर्सिव और अनप्लेजेंट स्टिमुलस फॉर यू. बट यू डिड अ गुड थिंग, दैट वाज ऑफ स्कोरिंग A+ इन योर मार्क्स एंड योर पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी फ्रॉम दैट थिंग. सो योर फादर कम्स एंड टेल्स यू कि वो रीइंफोर्स करना चाह रहे हैं आपकी A+ लाने के बिहेवियर को, अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं. So your father tells you कि ठीक है, इस संडे का जो तुम्हारा डस्टिंग का काम है वो तुम मत करना, I'll do that on your behalf. ठीक है, so आपका जो unpleasant stimulus था, aversive stimulus था of dusting, it has been removed to actually increase your behavior of getting A+ the next time also. Okay, so are we clear with positive and negative reinforcement? ठीक है भाई, positive reinforcement क्या हो गया कि मैंने कुछ तो add किया है आपके behavior में so that you are doing that behavior again and again. नेगेटिव reinforcement हो गया, मैंने कुछ नेगेटिव रिमूव किया है, कुछ अनप्लेजेंट रिमूव किया है so that you do that behavior again and again. Now coming to punishment. punishment में पॉजिटिव punishment क्या है, अब क्योंकि ये punishment है, मैं उस behavior को reduce करना चाह रही हूँ, so the things will get switched. एवर्सिव यहाँ पे पॉजिटिव के पास चला जाएगा इफ यू सी, एंड प्लेजेंट नीचे आ जाएगा नेगेटिव के पास. ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड क्या कर रही हूँ, एक एक एवर्सिव या एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस को मैं ऐड कर रही हूँ ताकि आपका जो बिहेवियर है वो डिक्रीज हो जाए. सो मे बी आपने बहुत परेशान कर रखा है अपने नेबर्स को, आप उनके घर की बेल बजा के आ जाते हो बार बार. सो योर नेबर्स हैव कंप्लेन टू योर पेरेंट्स कि आप अपने बच्चे को समझा लो, ये बार बार हमारे घर की बेल बजा के चली जाती है. ओके, so your parents want to decrease that behavior of yours, so they'll punish you. अब मे बी उन्होंने रूट जो है वो डिसाइड किया पॉजिटिव पनिशमेंट का. सो they'll tell you कि एवरी संडे एंड एवरी मंडे यू हैव टू डू डस्टिंग. ठीक है, बिकॉज इफ यू यू हैव टू डू डस्टिंग बिकॉज यू आर रिंगिंग द बेल ऑफ दैट आंट. तो आपको हर संडे और हर मंडे डस्टिंग करना पड़ेगा. ये आपके लिए पनिशमेंट है क्योंकि आप उन अपने नेबर्स को परेशान करके आ रहे हो. सो व्हाट हैज हैपेंड, आपके लिए एक एवर्सिव या एक अनप्लेजेंट स्टिमुलस अब ऐड हो गई, एंड यू विल ट्राई नॉट टू रिंग द बेल अगेन सो दैट यू कैन एस्केप दिस एवर्सिव स्टिमुलस. सो दिस इज एक्टिंग लाइक अ पनिशमेंट फॉर यू, जो आपके बेल बजाने के बिहेवियर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी. ओके, अनदर वन इज योर नेगेटिव पनिशमेंट. नेगेटिव पनिशमेंट में नेगेटिव है मतलब कुछ तो रिमूव होगा, और पनिशमेंट है तो कुछ ऐसा रिमूव करना पड़ेगा ताकि आपका बिहेवियर डिक्रीज होए. So I will remove something pleasant from your thing so that your behavior decreases. तो मे बी उन पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि अपने बच्चे को नेगेटिव पनिशमेंट देंगे बिकॉज द बच्चा इज रिंगिंग द बेल ऑफ नेबर्स. सो व्हाट दे से फादर कहेंगे कि आज मैं तुम्हारे लिए पास्ता कुक करने वाला था, बट यू विल नॉट गेट पास्ता फॉर 2 weeks
because you are ringing the bell and disturbing the neighbors. So यहाँ पे जो उस बच्चे के लिए pleasant stimulus था, that was pasta, has actually been removed from their menu because the person's behavior of ringing the bell of their neighbors should be decreased, और ये आपका negative punishment हो जाता है. ठीक है, are we clear with this entire table? If we are clear, give me a thumbs up right now in the comment section that yes, reinforcement and punishment का difference is clear. ठीक है, तो आपकी क्या है, positive reinforcement है and negative reinforcement है. We'll talk about schedules of reinforcement in a while. I would first want to elaborate a little upon this reinforcement and punishment bit. ठीक है, तो आपका क्या है, reinforcement, okay. You can also write it down alongside reinforcement. You have punishment. You can have positive reinforcement and you can have negative reinforcement. Similarly, similarly you can have positive punishment and negative punishment also. ठीक है भाई, चलिए. अब reinforcement का मतलब क्या होता है? To increase behavior. Punishment का मतलब क्या होता है? To decrease behavior. Positive का मतलब क्या होता है? To add something. Negative का मतलब क्या होता है? To remove something. Yes. Now, if my reinforcement is positive, that means I will add कुछ ऐसा जो मेरे behavior को increase करे. So what do you think I will add? What kind of a stimulus I will add so that my behavior will get increased and I will do that behavior again and again? So I will add a pleasant stimulus ना, कुछ अच्छा ही add करूंगी ताकि मैं बार बार वो चीज करूं. Example, I get a chocolate. ठीक है, मेरे को chocolate मिली A+ लाने के लिए. That's your example. Then is negative reinforcement. So negative मतलब remove. So what kind of a stimuli should I remove so that my behavior का tendency is increased, so that I again and again try to do that behavior? So I will remove an aversive stimuli. Aversive का मतलब क्या होता है? Unpleasant stimuli. For example, मुझे संडे की डस्टिंग से छुट्टी मिल गई. ओके, नो संडे डस्टिंग बिकॉज आई गॉट A+. सो नो संडे डस्टिंग फॉर मी बिकॉज आई गॉट A+ इन माई एग्जाम्स. ठीक है, तो ये तो आपका हुआ क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. नाउ कमिंग टू पनिशमेंट. पॉजिटिव मतलब आई विल ऐड. नाउ व्हाट काइंड ऑफ अ स्टिमुलाई शुड आई ऐड ताकि मेरा जो बिहेवियर है वो फिर से ना हो. ठीक है, मैं फिर से वो बिहेवियर करने से डरूं कि अरे भाई मैंने फिर से वो चीज करी तो मेरे साथ ही हो जाएगा. सो आई शुड ऐड एन एवर्सिव स्टिमुलस नाउ ताकि मेरा जो बिहेवियर का टेंडेंसी है वो डिक्रीज हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं गाड़ी चला रही हूँ, ठीक है, एंड आई एम रैश ड्राइविंग. ठीक है, एंड रैश ड्राइविंग की वजह से क्या हुआ, मुझे मुझे देना पड़ा फाइन. ओके, आई हैड टू गिव अ फाइन बिकॉज ऑफ रैश ड्राइविंग. सो फाइन कोई ऐसी चीज हो गई जो मेरे ऊपर ऐड हो गई, मुझे और खर्चा करना पड़ा, पैसा देना पड़ा, है ना. सो आई हैड टू गिव फाइन. और मे बी द ट्रैफिक पुलिस दे जस्ट स्लैप्ड मी कि अरे तुमने रैश ड्राइविंग क्यों किया, या माय पेरेंट्स जस्ट स्लैप्ड मी. सो स्लैप भी क्या होता है, वो एक तरीके का पॉजिटिव पनिशमेंट होता है बिकॉज आई एम एडिंग समथिंग सो दैट द बिहेवियर कैन बी डिक्रीज्ड और फिर से वो इंसान रैश ड्राइविंग ना करे. सो आई एम एडिंग एन एवर्सिव स्टिमुलस. नेगेटिव पनिशमेंट, नेगेटिव मतलब रिमूव. तो मैं ऐसी कौन सी स्टिमुलाई को रिमूव करूं ताकि जो है वो बिहेवियर फिर से ना हो. आई विल ट्राई टू रिमूव अ प्लेजेंट स्टिमुलाई, है ना. एक प्लेजेंट स्टिमुलाई को अगर मैं रिमूव करूंगी तभी वो बिहेवियर फिर से नहीं होगा. सो इन दिस केस एग्जाम्पल कुड बी मे बी जो ड्राइवर लाइसेंस है. ओके, अगेन आई एम ड्राइविंग वेरी रैशली and what the traffic police does, they take away this driving license from me. They take away my driving license because of rash driving. So what has happened, कोई चीज जो मुझे अच्छी लग रही थी, ड्राइवर्स लाइसेंस जो मुझे अच्छा लग रहा था, वो मुझसे ले लिया गया so that I do not engage in that rash driving again, है ना. So that is a kind of negative punishment. Now I hope this particular thing is crystal clear for all of you. इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन में आई डोंट थिंक एनीबडी हैज एवर एक्सप्लेन्ड ऑन यूट्यूब एट लीस्ट. ठीक है, तो मेक श्योर ये चार्ट आप बनाए और इसको रिवाइज करें ऑन अ डेली बेसिस. ओके, चलिए. नाउ अनदर टॉपिक दैट वी हैव फॉर योर ऑपरेंट कंडीशनिंग इटसेल्फ, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर इजी टॉपिक है.
दैट इज योर स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट. सो स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या बताते हैं? स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट बेसिकली हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि कितने इंटरवल पे रीइंफोर्स करना चाहिए ताकि एक बिहेवियर वापस रिपीट हो. रीइंफोर्समेंट का मतलब ही होता है ना बिहेवियर की टेंडेंसीज को इंक्रीज करना. सो वो कौन सा इंटरवल होना चाहिए जिसपे मैं रीइंफोर्स करूं ताकि बिहेवियर्स इंक्रीज हों. So there can be two types of schedules of reinforcement. You can have partial schedule of reinforcement and you can also have continuous schedule of reinforcement. ठीक है? Okay. So सबसे पहले continuous बता देती हूँ. Continuous schedule of reinforcement में क्या होता है कि जो आपका हर एक response है, every correct response is reinforced. ठीक है? आप गलत response को तो reinforce नहीं करेंगे ना. So every correct response is actually reinforced. तो जितनी बार भी आप करेक्ट चीज करोगे उतनी बार आपको चॉकलेट मिलेगा. सो एवरी टाइम यू आर गेटिंग एन ए प्लस, आई गिव यू अ चॉकलेट. टुडे यू गॉट एन ए प्लस, ये लो बेटा चॉकलेट. कल ए प्लस, ये लो बेटा चॉकलेट. सो दैट इज कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, दैट ऑन एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स आई एम एक्चुअली रीइंफोर्सिंग यू. But this is not a very good way of reinforcement sometimes because the person gets used to that particular chocolate sort of thing. जो भी उनको मिल रहा है एज ए reinforcement वो इंसान उसके यूज टू हो जाता है एंड दे डू नॉट वैल्यू इट आफ्टरवर्ड्स. ठीक है? अनदर काइंड ऑफ reinforcement schedule is partial, कि कभी दिया कभी नहीं दिया. ठीक है? सो पार्शियल जो है इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वी कैन हैव partial ratio schedules and we can have partial interval schedules. ठीक है? आपके पास partial ratio schedules हो सकते हैं of reinforcement and partial interval schedules of reinforcement can be there. Now ratio is actually related to amount and interval is related to how much time has passed by. ठीक है? ratio आपके amount से related है, interval आपके time से. Now ratio can be fixed ratio and ratio can also be variable ratio. Similarly interval आपका fixed interval हो सकता है और interval आपका variable interval भी हो सकता है. So again let's simplify these things for you. Schedules of reinforcement in general आपका partial हो सकता है और continuous हो सकता है. Continuous schedule of reinforcement is such wherein आपका हर एक correct response पे I am praising you, I am saying wow, wow, wow बहुत अच्छा किया, बहुत very well done. So every correct response is being reinforced. Partial schedule of reinforcement on the other hand, what happens that I am maybe reinforcing at after a particular point of time या वेरिएबल पॉइंट ऑफ टाइम या एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चीज करने के बाद रीइंफोर्स कर रही हूँ. सो एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स इज नॉट बीइंग रीइंफोर्स्ड ओवर हियर. ठीक है? पार्शियल में देयर इज अ डिफरेंस. अब पार्शियल जैसा मैंने बताया दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. इट कैन बी बेस्ड ऑन रेशियो, इट कैन बी बेस्ड ऑन टाइम. तो जो आपका रेशियो है, रेशियो एक्चुअली मीन्स द अमाउंट. ठीक है? दैट इज द क्वालिटी ऑफ समथिंग. एंड इंटरवल मीन्स कि कितना टाइम पास हो चुका है. एंड ईच ऑफ दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल. ठीक है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये फिक्स्ड रेशियो में क्या होता है. तो फिक्स्ड रेशियो में क्या होता है कि कुछ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सेज होते हैं, उसके बाद ही आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 टाइम्स, ठीक है, 10 टाइम्स अपने एग्जाम में ए प्लस लेके आए, ओनली देन यू विल गेट अ चॉकलेट. ठीक है? दैट इज फिक्स्ड रेशियो पार्शियल स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट. है ना? क्या है? फिक्स्ड है, रेशियो है, पार्शियल है, स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है. सो व्हाई फिक्स्ड रेशियो? पहली चीज ये अमाउंट पे बेस्ड है. 10 बारी आपको ए प्लस लेके आना पड़ेगा. सो अमाउंट है ना. या फिर एटलीस्ट 10 प्रोजेक्ट्स यू हैव टू कंप्लीट, only after that you will get a bonus. या फिर you have to get A plus 10 times in 10 exams, only then you will get a chocolate. So that is a fixed ratio. हर 10 बारी में हर एक बारी में चॉकलेट नहीं दे, हर एक बार चॉकलेट दूंगी. so it will be continuous reinforcement. but here I have fixed the times कि 10 बार अगर आप A plus लेके आए तो मैं आपको चॉकलेट देने वाली हूँ. वेरिएबल रेशियो में क्या होता है भाई? वेरी करेगा. ठीक है? यहाँ पे वेरी करेगा. मैंने कुछ फिक्स नहीं किया है. मे बी आपने 2 बारी ए प्लस लाया और मैंने आपको चॉकलेट दे दिया. मे बी आपने 12 बार ए प्लस लाया और फिर मैंने आपको चॉकलेट दिया. कभी आप 5 टाइम्स ए प्लस लेके आए फिर मैंने चॉकलेट दिया. सो इट इज लाइक गैम्बलिंग. गैम्बलिंग होता है ना, ये लॉटरी सिस्टम होता है ना कि कभी आप दबाओगे तो आपको एकदम से बहुत सारे टिकट्स मिल जाएंगे लॉटरी के. समटाइम्स यू नॉट गेट.
sometimes you'll get in minus, sometimes you'll get in excess. So that is a variable ratio कि आप sure नहीं हो कितने amount of responses के बाद exactly आपको reinforcement मिलेगा. It just varies. So the amount varies over here. So that is about ratio interval. Fixed है तो amount classified है, variable है तो आपको amount नहीं पता. Then is interval. Interval का मतलब क्या होता है? Time से related है. Okay, so in interval also we can have the divisions fixed interval schedule of reinforcement and variable interval schedule of reinforcement. So fixed interval schedule of reinforcement का best example is your salary. ठीक है, every month at the end of month you get your salary if you are a working individual at some organization. So ये क्या है कि एक fixed time period के बाद आपको एक reinforcement, salary is also like a reinforcement कि पूरे 30 or 31 or 29 or 28 days you have worked, full month you have worked, and at the end of the month you are getting a reinforcement for that. That is, you are getting a salary for that in return for the work that you have done. So salary is an example of fixed interval कि एक fixed time period के बाद आपको जो है आपका एक पर्टिकुलर reinforcement मिला है. Whereas in variable interval again time will vary, है ना, time will vary. For example, suppose you have gone to a lake side for fishing. ठीक है, अब आपको नहीं पता कि आपके पास वो फिश exactly कितने समय बाद जाली में फंस के आने वाली है ना. So time will vary over here. या फिर अगर आपको कभी बोनस मिलने वाला है, सो दे हैव नॉट टोल्ड यू कि आपको कितने समय के बाद बोनस मिलेगा. मे बी समटाइम्स यू गेट द बोनस आफ्टर 6 months, मे बी समटाइम्स यू गेट द बोनस आफ्टर 1 year of joining, maybe sometimes you get the bonus after 12 14 months of joining, something like that. So variable interval and variable ratio are similar, बस फर्क कहाँ जाता है? अमाउंट और टाइम में. वेरिएबल टाइम इज कि आपको टाइम नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने समय बाद आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा. वेरिएबल रेशियो इज आपको अमाउंट नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने चीजें करने के बाद या कितनी बारी कोई स्टिमुलाई या कितनी बारी कोई बिहेवियर करने के बाद आपको रीइंफोर्समेंट मिलेगा. फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल. Fixed ratio is you know that after how many responses exactly you will get the reinforcement, and fixed interval also you know that exactly after how much time you are going to get your reinforcement. So this is about your schedules of reinforcement that we have. Schedules of reinforcement में क्या है? Partial है, continuous है. And finally the last topic for today, जिसके साथ मेरा गला भी जाते हुए, okay, so that topic for operant conditioning is the application of operant conditioning. Application of operant conditioning में हमारे पास दो चीजें होती है. Let me just change the color of this pen. Yeah, so we have shaping and we also have something known as behavioral modification. Okay, so these are the two things that we have as applications of operant conditioning. तो shaping में क्या होता है? Shaping में you are again trying to make a person learn something and you are reinforcing every approximation, every simple behavior in that step. ठीक है, हर एक simple behavior जो step में हो रहा है, you are reinforcing that actually lead to the behavior. For example, ठीक है, ये चीज example से ही समझ आने वाली है. आप एक छोटे बच्चे को ए अल्फाबेट लिखना सिखा रहे हो. सो हाउ डू वी यूजुअली टीच? वी यूजुअली टीच ना कि स्टैंडिंग लाइन होती है, स्लीपिंग लाइन होती है. तो पहले बच्चे ने स्टैंडिंग लाइन बनानी सीखी. यू रीइंफोर्स द चाइल्ड दैट वेरी गुड, यू हैव डन अ गुड जॉब. देन बच्चे ने स्लीपिंग लाइन बनानी सीखी. सो अगेन यू रीइंफोर्स दैट वेरी वेल डन, यू आर अ रॉक स्टार एंड स्टफ. ठीक है, देन ग्रेजुअली यू tell them that okay you have to draw a slanting line also. So when they learn that also, you also reinforce that part. फिर ग्रेजुअली क्या है, वो इन दो स्लैंटिंग लाइंस को ज्वाइन करना सीखते हैं. देन यू रीइंफोर्स दैट पार्ट. देन देयर विल कम अ टाइम दैट दे विल लर्न टू एक्चुअली ड्रॉ दिस अल्फाबेट ए. सो यू अगेन रीइंफोर्स. सो शेपिंग में क्या है कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो आपको सिखाना है, उस बिहेवियर तक रीच करने के लिए जो अलग अलग स्टेप्स हैं, we are reinforcing at each and every step to actually reach that behavior. So you know the simple steps in behavior via successive approximations are reinforced until we actually reach the desired behavior. Here the desired behavior was of drawing this alphabet A or writing this alphabet A.
तो शेपिंग में ये हो जाता है, यहाँ पे भी हम ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी कि रीइंफोर्समेंट का यूज कर रहे हैं कि हम हर एक सिंपल स्टेप को रीइंफोर्स करे जा रहे हैं ताकि बच्चा मोटिवेटेड रहे और इवेंचुअली वो ये बनाना सीख ले, दैट इज शेपिंग। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन में कुछ टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं, टेक्निक्स दैट एक्चुअली हेल्प यू टू चेंज द अनडिजायरेबल बिहेवियर। कुछ हमारे पास अनडिजायरेबल बिहेवियर्स भी होते हैं ना, सर्टेन एक्टिविटीज दैट वी डू नॉट विश टू डू। फॉर एग्जाम्पल मे बी कोई इंसान घंटी बजा के आ रहा है, आई डोंट वांट दैट पर्सन टू डू दैट, सो आई विल ट्राई टू चेंज दैट अनडिजायरेबल बिहेवियर, है ना। सो इस अनडिजायरेबल बिहेवियर को एक डिजायरेबल बिहेवियर में कन्वर्ट करने को ही बिहेवियरल मॉडिफिकेशन कहते हैं। और इसके लिए देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर देयर, ठीक है। सो देयर इज योर टोकन इकोनॉमी, ओके। सो वी हैव टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी में क्या होता है, हम लोग टोकन्स का यूज करते हैं, ओके। सो एज व्हेनेवर यू विल डू सम गुड थिंग्स, आई विल गिव यू टोकन एवरी टाइम, एंड टूवर्ड्स द एंड मैंने कुछ मे बी अमाउंट बता रखा है दैट व्हेन यू विल कलेक्ट 15 टोकन्स, then you can exchange those tokens for whatever you want. So maybe you are a child and you are engaging in very aggressive behavior and I want to change that. वो अग्रेसिव बिहेवियर मेरे लिए क्या है, मेरे लिए तो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, मैं उसको चेंज करना चाहूंगी टू अ desirable behavior, that is you don't react in an aggressive manner. So maybe what I'll try to do is कि मैं आप child को बोलूंगी कि every time you do not behave in an aggressive manner, I will give you a token. Token is anything, कोई भी momentum सा चीज कुछ भी मैं आपको दूंगी एक टोकन, और जब आप ऐसे करते करते 15 टोकन्स कलेक्ट कर लेंगे तो उस 15 tokens के बदले you can get a toy from me. So in that process what the child will try to do, the child will try to work on their behavior, है ना, कि aggression आ रहा है तो they will not behave in an aggressive manner, they'll take one token from me. फिर से कुछ ऐसा हुआ, एक और टोकन लिया, करते करते जब तक वो 15 टोकन्स कलेक्ट करेंगे देयर बिहेवियर वुड हैव मॉडिफाइड अ लॉट. सो दैट इज टोकन इकोनॉमी, जहां पे मैं इन ऑब्जेक्ट्स दैट आर नोन एज टोकन्स उनका यूज कर रही हूँ टू एक्चुअली रीइंफोर्स द बिहेवियर, एंड एंड में इन टोकन्स को कलेक्ट करके कुछ भी ऐसा लिया जा सकता है, दे कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर एनीथिंग दैट द चाइल्ड or the individual actually likes. So that is again a kind of application of this operant conditioning only, जहाँ पे हम reinforcement का explicitly use कर रहे हैं एक undesirable behavior को desirable behavior में convert करने के लिए. So this is your token economy. Another one is time out. Time out में हम लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा अगर गुस्सा आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, so time out is kind of a mild punishment. So if the child is not behaving in a very good manner, usually ये बच्चों पे किया जाता है, but you can also use it at on adults, ठीक है। बच्चे अगर बहुत ज्यादा misbehave कर रहे हैं या person बहुत misbehave कर रहा है, you just put them out of the situation for some time, ठीक है। मे बी एक रूम में बोला कि आप अभी इस सिचुएशन से बाहर जाओ, यू जस्ट गो इन योर रूम एंड सिट देयर, सो दैट्स अ टाइम आउट। ये एक तरीके की माइल्ड पनिशमेंट ही है, मैं पनिश ही करना चाह रही हूँ। पनिश है मतलब जो बिहेवियर था उनका वो अच्छा नहीं था, डिजायरेबल नहीं था, सो आई एम ट्राइंग टू रिड्यूस दैट अनडिजायरेबल बिहेवियर ओवर हियर। सो टाइम आउट में मैं क्या कर रही हूँ, मैं उनको बोल रही हूँ दैट यू जस्ट स्टेप आउट ऑफ दिस सिचुएशन फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम, यू जस्ट गो अवे फ्रॉम हियर, उसके ऊपर से सारा अटेंशन जो है आपको रिमूव कर देना है, ताकि that person realizes that the next time they do this behavior again, this is what will be happening with them, ठीक है। फिर आपके पास आपका बायो फीडबैक भी एक तरीका होता है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन का। बायो फीडबैक में क्या होता है कि आपके बॉडी की जो बायोलॉजिकल कंडीशंस हैं, ओके, उनसे क्या लिया जाता है, उनसे फीडबैक लिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, जैसे ब्लड प्रेशर है, ओके, and certain things, these things are taken into consideration कि अभी at the moment आपका blood pressure कैसे चल रहा है, heart beat कैसे चल रहा है। So basically in biofeedback you are trying to take feedback from these biological conditions, ताकि आपकी जो इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेज है, जैसे ब्लड प्रेशर है या other things, like when you are in a very stressful situation, maybe you are not able to control your thought processes, maybe you are not able to control your BP and it goes out of control. What we are trying to do is we are trying to bring these involuntary responses under
वॉलेंटरी कंट्रोल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहां पे आप अपना बिहेवियर या अपना एंगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ता जा रहा है, सो यू नाउ नो हाउ टू एक्चुअली डील विद योर बॉडी। सो बायो फीडबैक में कुछ टेक्निक्स सिखाई जाती है जिससे आप अपने जो आपके इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज है, बीपी को कंट्रोल में रखना, एंग्जाइटी को कंट्रोल में रखना, उन चीजों को आप वॉलेंटरी तरीकों से कर सकते हो, सो दैट यू आर एबल टू कंट्रोल एंड मेंटेन योर बिहेवियर इन अ मैनर। ठीक है। And then there is another technique known as ABA. ABA क्या होता है? Applied Behavioral Analysis. So this is a kind of therapy that we have, that usually the therapists give. ठीक है। Applied Behavioral Analysis होता है, ये एक modern technique है, और यहाँ पे बहुत सारे सिर्फ कोई एक टेक्निक यूज नहीं की जाती एबीए में टू मॉडिफाई द बिहेवियर। देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्निक्स दैट आर यूज्ड इन एबीए टू मॉडिफाई द बिहेवियर्स। मे बी टोकन इकोनॉमी भी यूज कर लेंगे, टाइम आउट भी यूज कर लेंगे, माइल्ड फॉर्म ऑफ पनिशमेंट्स, रीइंफोर्समेंट, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू इवेंचुअली हेल्प द पर्सन मॉडिफाई देयर अनडिजायरेबल बिहेवियर इनटू अ डिजायरेबल वन। ओके, सो या दिस इज अबाउट टुडेज वीडियो। आज हमने बहुत सारी बातें करी हैं, किस बारे में? हमने बात करी है ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। सो अर्लियर आई वाज थिंकिंग दैट आई विल ड्रॉ फॉर द स्मॉल पार्ट्स ऑफ दीज वीडियोस, बट देन यू ऑल गाइज इंसिस्टेड कि नहीं, हमें फटाफट सिलेबस कंप्लीट करना है। सो आई हैव ट्राइड टू एक्यूमुलेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेंट कंडीशनिंग इन दिस सिंगल वीडियो, and yeah, I hope you guys have learned something out of it, and today कुछ नया सीखने को मिला है। जो भी नया सीखने को मिला है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, and I'm really doing hard work for you guys so that you can succeed in your exams and get quality content through this platform. So if you feel कि हाँ quality content है, अगर आपको hard work दिख रहा है, तो make sure guys before leaving you subscribe to the channel and also share it with your friends, with your psychology mates, जिनको हो सकता है ये वीडियोस बेनिफिट करे बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको कर रही हैं। एंड लाइक द वीडियो, लीव योर कमेंट्स, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू सी द पॉजिटिव कमेंट्स दैट यू गाइस गिव। कोई फीडबैक है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक है, आई एम ऑलवेज आई ऑलवेज वेलकम दीज काइंड्स ऑफ फीडबैक दैट हेल्प मी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वीडियोज दैट आई एम अपलोडिंग। सो चलिए, वील मीट टुमारो अगेन, वील कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑफ लर्निंग, एंड कल की वीडियो में हम लोग आपका कॉग्निटिव लर्निंग का डोमेन कवर करेंगे, एंड परसों मोस्ट प्रोबेबली वील कवर दिस चैप्टर ऑल्सो। ठीक है, वी आर जस्ट लेफ्ट विद टू टाइप्स ऑफ लर्निंग, एक आपका कॉग्निटिव लर्निंग है और दूसरा आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, एंड देन दिस चैप्टर इज खल्लास, खत्म। ठीक है, चलिए, सो वील मीट टुमारो, हैव अ वेरी गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।